Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as we know that we are on chapter number 5 and the name of our chapter is Forms of Energy and Energy Transfer. Today we are going to discuss about behavior of light. So my dear students, before moving on towards the lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, listen to the questions very carefully and then answer them. So my dear students, here you can see a few pictures. There's a solar panel and windmill. So quickly tell me, what is the importance of energy conservation? Energy को conserve करने की क्यों ज़रूरत है? क्या अहमियत है इसकी? In this way we can generate environmental friendly energy and we can avoid pollution, और इसके अलावा we can conserve our resources which are non-renewable like fossil fuels. Okay, what are our responsibilities in conserving of energy resources? हमारी responsibility क्या है? What should we do to conserve the energy? हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो उसका यूजेज है उसको कम करना चाहिए, अनवांटेड लाइट्स को ऑफ कर देना चाहिए. इसके अलावा हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी तरफ मूव ऑन करना चाहिए लाइक सोलर पैनल एंड windmill. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards an activity. So here you can see a torch, और ये torch on हुई है, आपको light piece से नजर आ रही है. So quickly tell me, do you think how light travels? हम पहले ये बात पढ़ चुके हैं कि light कैसे travel करती है. Light travels in a straight line, यानी कि अगर आप torch को on करें तो it travels in a very straight line, यानी कि straight line में ये जो है बिल्कुल ट्रेवल करती है. सो इसके ऊपर हम प्रीवियस ग्रेड्स में एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सो यू नो कि लाइट की जो ट्रेवलिंग का पाथ है वो हमेशा स्ट्रेट होता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैन लाइट पास फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, यानी कि क्या लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर से पास थ्रू कर सकती है? यस, इट कैन पास थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉलीथीन होता है या कोई भी जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है उसमें से लाइट पास कर जाती है, उसका शेडो अपेयर नहीं होता. लेकिन जब कोई भी चीज लाइट को ब्लॉक करती है, लाइट उसमें से पास नहीं कर सकती, तो फिर उसका शेडो फॉर्मेशन होती है. Okay, my dear students, let's quickly have a look at the student learning outcome for today. In today's lecture, students will be able to relate familiar physical phenomenon, shadows, reflection and rainbows to the behavior of the light. So आज हम shadows और reflections के बारे में बात करेंगे. So my dear students, let's quickly look at the pre-reading question. So what is shadow? When the light is blocked by an object, the black shadow appears at the back of the object. क्योंकि जब भी आप लाइट के पाथ को ब्लॉक करते हैं तो उसका शेडो अपेयर होता है. यानी कि जैसे अगर मैं लाइट के पाथ को अपने हैंड से ब्लॉक कर रही हूं तो इसकी बैक साइड पे, यानी कि एट द बैक ऑफ माय हैंड, शेडो जो है वो अपेयर होगा. तो इस तरीके से जो है वो शेडो अपेयर होता है. एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन हम किसको कहते हैं? यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस, दिस इज रिफ्लेक्शन. यानी कि जब आप किसी मिरर से लाइट को टकराती है तो ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो इसी तरीके से जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है. आज हम इन्हीं दो फिनोमिनन्स के ऊपर बात करेंगे, दैट व्हाट इज शेडो एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन. So my dear students, now let's quickly move forward towards your reading. So quickly open page number 71 in your science 4 books. I hope everybody has opened the pages. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Behavior of light. What is light? According to an opinion, it is the absence of darkness. In the scientists' view, light is a form of energy traveling in a straight line. Both schools of thought are valid. Let's study how. So my dear students, light क्या चीज है? अगर आप एक वैसे इन जनरल बात करें, लाइट हम कहते हैं लाइट ऑन कर दो, तो दैट मीन्स टू लाइट अप द डार्कनेस, यानी कि अंधेरे को खत्म करने के लिए हम लाइट जलाते हैं.
लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो चले आज हम लाइट के बारे में फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। सो शेडो फॉर्मेशन, ऑब्जर्व अ शेडो इन द पाथ ऑफ द सन, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस फिनोमिनन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब सन रेज को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि सन रेज हर तरफ स्कैटर हो रही होती हैं, तो जब आप उसकी रोशनी में खड़े होते हैं एंड यू आर ब्लॉकिंग इट, सो यू ऑब्जर्व अ शेडो एट योर बैक। आप जो शेडो है अपने बैक पे, साइड पे, लेफ्ट या राइट, कहीं पे भी ऑब्जर्व अपना कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? Because whenever you block the light and it cannot pass through that object, so a dark shadow appears. So that is because of the blocking of the light. यानी कि लाइट को ब्लॉक करने की वजह से ये appear होता है। The light energy traveling from the sun in a straight line was blocked by a tree on the, here you can see, यानी कि यहां जो है आप ट्री को देख सकते हैं, इसने लाइट सन रेज को ब्लॉक किया एंड हियर यू कैन सी द शेडो ऑफ द ट्री। ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्री लाइट रेज कुड नॉट रीच, सो डार्कनेस अपीयर्ड देयर, व्हिच आर टर्म्ड एज शेडो। शेडो इज ऑलवेज डार्क, व्हाई? द रीजन इज दैट शेडो इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। सो यहां हमने जो दो थ्योरीज अभी बात की जिनके ऊपर कि जब भी लाइट की एब्सेंस होती है, गैर मौजूदगी जो लाइट की होती है, उसको हम डार्कनेस कहते हैं, और मौजूदगी जो होती है यानी कि जब डार्कनेस खत्म हो जाती है तो उसको हम कहते हैं लाइट। और इसी तरीके से लाइट जो है इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां हम ये चीज देख रहे हैं कि जहां लाइट नहीं पहुंच सकती वहां डार्कनेस अपीयर हो जाती है। तो ट्रीज जहां जहां लाइट को ब्लॉक कर देता है वहां वहां शेडो, डार्कनेस अपीयर होती है, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ लाइट, और इसी वजह से शेडो अपीयर होता है। अभी मैं आपको शेडो बनाकर भी दिखाती हूँ। हम लाइट्स ऑफ करेंगे एंड मैं लाइट जो है वो टॉर्च के थ्रू जो है उसको हम शेडोज जो है मुख्तलिफ बनाकर देखेंगे, हम उसके पाथ को ब्लॉक करेंगे। देयर इज अ गैप light behind the tree facing the sun, so whenever a solid opaque object blocks the path of the light, a shadow is formed. तो चले अब हम शेडोज जो है वो अपेयर करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑल वी नीड इज अ टेबल, उसके ऊपर मैंने व्हाइट चार्ट पेपर रखा है, एंड वी नीड अ टॉर्च, यानी कि हमें एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, और हम जो है वो डार्क आउट कर देंगे बाकी इसको लाइट्स को, और उसके बाद आई विल शो यू हाउ वी कैन मेक द शेडोज। Okay, so here you can see that I have a torch. Everybody can see it. Now with my hand, I will make shadows on this white chart paper. ठीक है? So light is traveling in a straight line. ये अब मैं इसको ब्लॉक करूंगी अपने हैंड से, so you can see instantly मेरे हैंड का शेडो जो है वो आपको पेपर पे नजर आ रहा है। That is where the light is absent, यानी कि लाइट जहां नहीं पहुंच सकती वहां जो है वो शेडो जो है वो अपेयर हो जाता है, बिकॉज माई हैंड इज ओपेक, इसमें से लाइट पास नहीं कर सकती। सो एनीथिंग दैट इज ओपेक लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक ट्रांसपेरेंट चीज का भी शेडो बना के दिखाती हूँ। आई हैव अ प्लास्टिक बॉटल हेयर विच इज ट्रांसपेरेंट, और आप देखेंगे कि लाइट इसमें से मैक्सिमम जो है वो पास कर सकती है, तो इसका बहुत ही कम शेडो जो है वो अपेयर होगा। तो आप ये देखें कितना लाइट सा शेडो है, बिकॉज लाइट कैन मैक्सिमम पास थ्रू इट। लेकिन अगर आप मेरे हैंड का शेडो देखें तो बिकॉज इट इज टोटली ओपेक, लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। तो आप ये देखें किस तरीके से जो है शेडो अपेयर हुआ। सो एब्सेंस ऑफ लाइट जो है उसकी वजह से ये शेडो अपेयर हो रहा है, जहां जहां लाइट नहीं पहुंच सकती, सो देयर इज अ शेडो। इसको हम छोटा बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, डिफरेंट पोजीशंस बना सकते हैं, आप बटरफ्लाइज अपेयर कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप यू कैन प्ले विद योर शेडो। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रीडिंग अगेन। रिफ्लेक्शन, there is another phenomenon of light which is reflection. Now let's study about it. Reflection is another behavior of light. When light strikes an object, it scatters all over the place due to the tiny ridges present at the place. So my dear students, हम ये देखते हैं कि लाइट रिफ्लेक्शन कैसे होती है। रिफ्लेक्शन जो है ये लाइट का एक और बिहेवियर है। लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो ये हर तरफ स्कैटर्ड हो जाती है, क्योंकि टाइनी रिजेस होते हैं, जिसकी वजह से
वो हर तरफ जो है वो फैल जाती है। दैट इज हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड। इसी तरह जब लाइट मुख्तलिफ चीजों को टकराती है तो हम जो है उन चीजों को देख पाते हैं, क्योंकि लाइट उनके ऊपर टकराकर वापस हमारी आंखों तक जब आती है तो वी कैन इस तरह इमेज क्रिएट होता है। लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स ऑन टू द ग्लास सर्फेस एंड बाउंसेस ऑफ इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फॉलिंग रेज। द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्लास इज यूनिडायरेक्शनल बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ सर्फेस। सो लाइट जब हर चीज से टकराती है तो वो हर तरफ फैल जाती है, लेकिन जब ये ग्लास सरफेस से टकराती है तो ये एक ही डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, और ये इसकी एक यानी कि यूनिडायरेक्शनल वन डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब ये है क्योंकि ग्लास की सरफेस जो है वो बहुत ही स्मूथ होती है। नाउ आई विल शो यू। मेरे पास यहां ग्लास है, आई हैव अ ग्लास हेयर और आई ऑल्सो हैव अ टॉर्च। तो आप ये देखिए इसकी सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, और जब मैं इससे, अब देखें इसकी सरफेस से जब लाइट टकराएगी तो ये ऑपोजिट जो है वो फॉल करेगी इस तरीके से। सो दिस इज हाउ देयर विल बी रिफ्लेक्शन। इस तरीके से आपको रिफ्लेक्शन जो है वो नजर आएगा। तो आपको इसके अंदर जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन अकर्स, यानी कि लाइट जब उससे टकराती है ग्लास सरफेस से तो ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि ये हर तरफ मूव हो जाए, कभी यहां मूव हो जाए कभी यहां मूव हो जाए। नो, देयर इज ओनली वन डायरेक्शन ऑफ इट, ठीक है। Most of what we see in the world gets into our eyes due to diffused reflection, that is falling rays scattered all around after striking due to uneven surface. So my dear students, क्योंकि जितनी भी चीजों से लाइट टकराती है उनकी अनइवन सरफेस होती है, इस वजह से लाइट हर तरफ स्कैटर, यानी कि स्कैटर का मतलब फैल जाना, हर तरफ लाइट फैल जाती है। और जब वो हमारी आंखों तक पड़ती है तो मुख्तलिफ इमेजेस जो है वो हमारी आंखों में जो चीजें हमें इर्द गिर्द नजर आती हैं वो क्रिएट होते हैं। लाइट इसी तरीके से जो है वो आपको मुख्तलिफ चीजें नजर आती है, क्योंकि लाइट उनके ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है। लाइट उन पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, और दैट्स व्हाई यू कैन सी डिफरेंट थिंग्स। सो दिस इज शेडो फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द रेज ऑफ द लाइट, and the tree is blocking the rays, and the absence of light, where there is absence of light, this is creating a shadow because the light is blocked here by the tree. Then the other thing is reflection. Light travels in a straight line. So light reflection is a change in the direction of the light wave falling on the reflective surface. यानी कि यहाँ पे light totally reflect होकर यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। वैसे आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें होती हैं उनकी अनइवन सरफेस होती है, तो जब लाइट उनसे टकराती है तो वो हर तरफ ऐसे फैल जाती है। Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the evaluation. So quickly tell me, what is a shadow? Where there is absence of light, when light is blocked by something and there is absence of light there, a shadow is formed. How does shadow of objects formed? When light is blocked by an opaque object, a shadow is formed. So what is reflection? When light bounces back when it strikes a reflective surface, this is called reflection. How does light reflect? Light reflects in every direction, but when it hits a shiny smooth surface like glass, तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट बैक करती है इन वन डायरेक्शन। अदरवाइज ये हर डायरेक्शन में स्कैटर होती है चीजों से टकराकर। Now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, here is a worksheet. Write down your name and roll number. Complete the sentence by writing the missing words. So here you can see missing words, and these are the sentences. Light travels in a straight line. Shadows are formed when light is dashed by an object. Light is blocked by an object. The closer the object is to the light source, the dash is the said shadow, the bigger is the shadow.
Shadows can change according to how near or far the objects from the light source are. The shadows can change size. Shadows can change their shape according to where the light is. Shadows always have their objects but with no details. Position. Sorry. This will be 5. Shadows can change their position and shadows always have their object's shape. Okay. Now what is the reflection of light? Complete this. Now how can we see objects because of the reflection of light? Okay, this is the next part of the worksheet. What are opaque objects through which light cannot pass? What is shadow? Choose the correct position of the sun based on where the shadow is formed. So my dear students, here is the shadow. So where will be the sun? This is the correct position. It will strike here and the rays are blocked and the shadow is formed here. So this is the correct one. Okay, my dear students, for homework, you will do independent activity number 3 given on page number 72 and you will do question number 7 from section C given on page number 80. So, according to the independent activity number 3, make shadows of different animals using your hands. So, my dear students, जिस तरह मैंने एक white chart paper और torch की मदद से अपने hand से shadow create किए, इसी तरीके से आप जो है मुख्तलिफ जो है वो shadows बनाएं using a torch and your hand. ठीक है, मुख्तलिफ animals जो है आप उनके shadows इनसे create कर सकते हैं. This is your homework and you will do question number 7. Describe the reflection as behavior of light. So this is easy. आपने बताना है कि reflection क्या है, how it is a behavior of light और ये कौन सा behavior है, इसमें क्या होता है. So you will do it in your notebooks as your homework. So for wrap up today, we have learned that light travels in a straight line. Shadow is the absence of light. Whenever a solid opaque light does not pass through, blocks path of the light, a shadow is formed. When light rays strike an object, scatters all over, this is reflection of light. Due to reflection, we see objects. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.